सेवा पोर्टल का शुभारंभ करें अपने कर कमल द्वारा रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और बहुत बहुत बधाई सभी को। माननीय प्रधानमंत्री जी के संजीवनी वरद हस्त में तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्योगों को निवेश को जैसे उछाल सा मिल गया हो। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी संबंधित सुविधाएं बस एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। When we decided to expand, our priority was clear. Find a state where business meets governance that delivers results. That's when we looked at Madhya Pradesh. A state inspired by the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047 and led by the Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav's mission to make Madhya Pradesh the industrial heart of India. Everything started with a click on the revamped Invest MP portal. It's not just another website, it's a single portal for all industry services, bringing together every department, every approval, every investor need. From exploring industrial land and calculating incentives to generating AI-based feasibility reports and tracking applications. Everything I needed was available on a single platform with one-click submission. The new portal is smarter, faster, and simpler. With a common application form for all approvals and services, we no longer need to fill repetitive details. Through business process re-engineering, document requirements have been cut drastically. Now every service works in sync. One-click submission, one-click unified payment, faceless incentive processing, and seamless integration with the entity locker. A zero-trust centralized document repository using PAN as a single business identifier. No repetitive uploads, no physical follow-ups. What impressed us most was the clarity. Applications are tracked in real time. Approvals arrive without delay, all through a single compliance dashboard. No back and forth, no confusion. Every update and status appears instantly. That transparency builds trust and saves time. In a matter of weeks, our land allotment was complete. Approvals that once took months now take days. Even incentives are now processed through an AI-enabled faceless system with no query validation, ensuring speed, accuracy, and trust. Additionally, the re-engineered incentive dispersal system has enabled us to process our incentives real quick. What sets MP apart is the ecosystem, from sectoral approval guidance and industry land research tools to incentive calculators integrated across departments. The new Invest MP portal ensures that every investor has clarity before making a move. Our journey in Madhya Pradesh is proof that when leadership and industry move together, growth becomes unstoppable. From Viksit Bharat to Viksit Madhya Pradesh 2047, the journey has already begun, and we are proud to be a part of it. और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया MP 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया। स्वच्छता साथी, वॉश ऑन व्हील्स नवाचार मध्य प्रदेश का नमन है स्वच्छ भारत मिशन को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ये है मोबाइल ऐप पर आधारित
व्यक्तिगत एवं संस्थागत शौचालयों की सफाई हेतु ऐप। आइए देखते हैं पहले इस पर लघु फिल्म। जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहलहाता है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, आपकी सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि पूरे मध्य प्रदेश में आपका संकल्प आज साकार हो रहा है। वॉश ऑन व्हील्स, स्वच्छता के क्षेत्र में एक ऐसा नवाचार जो अब पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति की नई मिसाल बनने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले से शुरू हुआ यह मॉडल आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सफाई पूरी तरह मशीनों से बिना हाथ लगाए की जाएगी। सेफ्टी और हाइजीन के लिए पीपीई किट का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इस मॉडल के संचालन के लिए एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जरिए वॉश ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। पहले स्वच्छता साथियों को स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जाएगा। ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था तय तारीख और समय पर टॉयलेट क्लीनिंग की बुकिंग कर सकेंगे। ऐप को सरल और हिंदी में डिजाइन किया गया है। कई गांवों को जोड़कर बनाए गए क्लस्टर से संबंधित स्वच्छता साथी ऐप खोलकर जीपीएस आधारित गूगल लोकेशन के जरिए नियत स्थान पर पहुंच सकेगा। स्वच्छता साथियों के लिए पूरे कार्य का प्रबंधन इसी ऐप के जरिए होगा। ऐप पर पारदर्शिता के लिए पूरा रिकॉर्ड और भुगतान का विवरण भी होगा। भुगतान कैश या ऑनलाइन किया जा सकेगा और ऐप में रेटिंग व फीडबैक देने की सुविधा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज वॉश ऑन व्हील्स कार्यक्रम का प्रदेश के सभी 55 जिलों में शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक 1235 स्वच्छता साथियों का चिन्हांकन किया जा चुका है। ऐप के लॉन्च होने पर इन सभी को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। और अब मैं निवेदन करूंगी एसीएस दीपाली रस्तोगी जी से कि कृपया रिमोट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएं और उनसे ये शुभारंभ कराएं इस ऐप का। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय। हमारे बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुमन के बैरी जी उपस्थित हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है माननीय कि कृपया हम सब के सामने अपने उद्गार प्रकट करें, विचार प्रकट करें। रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुमन के बैरी। Respected Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, my colleague in the Council of Ministers in New Delhi, the Minister for Civil Aviation, ministers of the state government, officials of the Chief Secretary, officials of the State Planning Agency. It is a great honor and pleasure for me to be asked to address this large and august audience on this very special day. Chief Secretary was extremely generous in acknowledging the partnership of Niti Aayog, and we were very pleased to help. But as was made clear in his exposition, this is a product of a lot of consultation with stakeholders in the state. In that sense, it is the citizens' own vision. Madhya Pradesh truly stands at the heart of India, not just geographically, but strategically and symbolically. As we've been told, it is India's second largest state by area.
and fifth in population. Blessed, and this is important, with the largest contiguous forest cover in the country, which accounts for more than 30% of its landmass. And this immense biodiversity wealth is not just an environmental asset, it is central to India's ecological security and our global climate commitments. Those of you who follow these matters globally know that next week we will have in the Amazon town of Belém in Brazil, the so-called COP30, and a big focus in that is going to be the protection of the Amazon and the biodiversity it represents. I would just say that we don't perhaps publicize our own success in protecting this biodiversity, but the state should be congratulated for treating this as a valuable national asset. Positioned at the very center of our nation, Madhya Pradesh shares borders with 5 other states, connecting almost half of India's population within a 4-hour radius. Its geography gives it unmatched logistical and economic advantages, making it a national hub for national integration, trade, and growth. And those of you who read go beyond the presentation made by the Chief Secretary and read the document will see that it is very much these themes that have been explored in great and granular depth in the vision document. But since I'm here from Niti Aayog, I would also like to locate what the state is attempting through this document and through the efforts of the Honorable Chief Minister in the larger context of Viksit Bharat and indeed what is happening in the world. Prime Minister Modi in 2022 made a very important observation. He was giving the Arun Jaitley Memorial Lecture, and he said that in India, inclusion supports growth and growth supports inclusion. You cannot have inclusion without growth, and I shall return to the theme of growth in a minute, but you cannot have growth in a vibrant democracy with the diversity of India without inclusion. And I would say that the vision document of Madhya Pradesh is one example of if you like, the interdependence between growth and inclusion. I would also make the point that growth as an objective for India is, I would say, in many ways, a relatively recent ambition, reflected most of all in Prime Minister Modi's vision of India as a modern society by 2047. I would say that for too long, our focus was exclusively on inclusion, and the fact that the agenda for this state and for other states is growth is very important. And let me just elaborate on that theme of growth because of its importance. Prime Minister Modi has talked of India being a developed society by 2047. And by that he means a society that can meet the aspirations of its citizens. But it is not, it's not the only story, but it's very difficult to be a modern society without having essentially the characteristics of a modern economy, and we typically take our lead for what constitutes a modern economy by indicators of the World Bank. And to give you some numbers which may not mean that much to you,
Today, the World Bank talks of a advanced economy at being around $13,000 per capita, and India at the moment, by the same standards, is under 3,000. And so we are talking of multiplying by a factor of 4 our per capita income. And the calculations that have been done, there are many calculations, NITI has done some, the Finance Ministry has done some, they suggest that we are going to have to go from a very respectable rate of growth of 6% to about 8% growth on average between now and 2047. And here I must cite another statement of our Honorable Prime Minister, that India grows when its states grow. And so what we have heard today, the ambitions and the aspirations of Madhya Pradesh are an essential part of our desire as a nation to become a developed economy, an advanced economy by 2047. Now, let me just, growth is a mysterious process. I can't say that economists or anybody else fully understands it, how to make it happen. One thing is certainly to raise the rate of investment, but a simple way of thinking about it for India today is that if we could get more people into our labor force and increase their productivity, that results in higher growth. And there is already in that formulation a kind of challenge, a contradiction, because what does increased productivity mean? It means that you can do the same work with less people. But if you don't get higher productivity, you cannot pay people more. People are basically paid on the basis of their productivity, be it in manufacturing, be it in agriculture. And so it is for that reason, at the national level and also at the state level, that fast growth is how you achieve improvements in living standards. And in this, at a national level, and I think also at the state level, the role of women, and particularly women in agriculture, turns out to be absolutely fundamental. You would see on the cover of the Viksit Madhya Pradesh document lots of photographs of women. Why is getting women into the labor force so important? Because by and large, India's so-called male labor force participation rate is at international standards. But its female labor force participation rate shows a lot of scope for improvement. And so a strategy which was explained to me this morning by one of the investors here of bringing women into the labor force, skilling them and training them, is very much aligned with the national goal of raising the growth rate. And in that respect, even though we are talking about 2047, let me say that the next decade is important. And the reason it's important is that when you become richer, growth slows down. So if we want an average of 8% all the way from now to 2047, instead of the 6% we've enjoyed up till now, then we've got to do even better than that in the next decade. And one way we think about this at NITI Aayog is we are currently classified by the World Bank as a lower middle income country, and if by 2032 or 2033 we can become an upper middle income country, that would be doing well. Now, let me conclude by making 2 or 3 final points. The reason why this
next decade is really critical in our Amrit Kal is because of our demographics. China grew very fast when its labor force, when the portion of the population entering the labor force was very rapid. We are in that period right now. This is our Amrit Kal. But second, I would also, so if we do not use this opportunity, it may not return. So the next decade is critical. But I would also say that in the way that there is this tension between productivity on the one hand and employment on the other, there is a tension also on technology. India has very successfully harnessed technology through DPI, the digital public infrastructure, through some of the examples of the state and ease of doing business, etc. But we are now faced with, as it were, a totally different perspective, which is artificial intelligence. And I would say for Madhya Pradesh and for India, making sure that artificial intelligence as the new technology helps us in our goals of raising employment and raising productivity. This is a big opportunity and a big challenge for India. And let me end by just saying that I at Niti Aayog is a creature of this Prime Minister. We are privileged to have had the same Prime Minister in role for 11 years now. We are privileged to have a Prime Minister who deeply, passionately leads from the front on issues of technology. Many of you in the audience are amongst the young. Viksit Bharat is for you rather than for people of my generation. So let me conclude by saying it has been a privilege to collaborate with the state on this landmark document. It remains a privilege for Niti Aayog to collaborate with the state Niti Aayog. You are very lucky in the leadership of your Chief Minister. And really, in terms of the endowments of the state, I see very little to hold you back, other than skills perhaps, and governance, administration. So let me again thank the organizers for giving me this opportunity and wish the state every success. Thank you. Thank you so much. Respected श्री सुमन के बैरे जी, हमारे प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी से नए रास्ते निकल रहे हैं विकास के, सुगमता के और सुखद मध्य प्रदेश के। बात पावन नगरी उज्जैन की हो या वाणिज्यिक शहर रीवा की। आज हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी उपस्थित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में और माननीय श्री नायडू जी की उपस्थिति में आज यहाँ पर कुछ MOUs एक्सचेंज किए जाएंगे, अनुबंध पत्र प्रदान किए जाएंगे। उज्जैन के निकट स्थित दताना हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य एक अनुबंध किया जा रहा है। हमारा आग्रह है श्री संजय कुमार शुक्ला, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एविएशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री विपिन कुमार से कि कृपया इस MOU को एक्सचेंज करें। सीएम साहब का निर्देश हुआ है तो मैं आपकी अनुमति से सबको बताना चाहेंगे हम लोग कि भारत सरकार के सहयोग से माननीय उड्डयन मंत्री भी यहाँ हैं देश के, मध्य प्रदेश में 8 कमर्शियल एयरपोर्ट है। ये 9वें का एग्रीमेंट हो रहा है उज्जैन का। तालियां बजाकर सब लोग स्वागत करें। मध्य प्रदेश सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारी कर रहा है। विभिन्न श्रद्धालुओं के लिए कम समय में सिंहस्थ महाकुंभ पहुंचने का ये बहुत ही उचित माध्यम होगा। उज्जैन एयरपोर्ट, उसकी जो कंडीशन होती है IFR कंडीशन, यानी रात में भी उड़ान भर सकता है, इसके संचालन हेतु इसे विकसित किया जाएगा।
हमारे बीच में ऑनरेबल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी गरिमा में उपस्थिति में। और अब रीवा नई दिल्ली फ्लाइट के लिए अलायंस एयर को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। अलायंस एयर के चेयरमैन श्री अमित कुमार से हमारा निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि कृपया ये अनुबंध पत्र प्रदान करें। ये सेवा 15 नवंबर 2025 से शुरू होनी अपेक्षित है। ये सेवा हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध होगी। हम सभी जानते हैं कि रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। रीवा वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मैहर में मां शारदा का मंदिर भी है। और इसके बाद रीवा इंदौर हवाई मार्ग हेतु इंडिगो एयरलाइंस को लेटर ऑफ अवार्ड के लिए मंच पर आमंत्रण कर रहे हैं। इंडिगो की तरफ से श्री संजीत भट्टाचार्य को, डायरेक्टर सेल्स मध्य एवं पूर्वी भारत, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर, दोनों से ही मेरी गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, कृपया ये अनुबंध पत्र प्रदान करें। यह सेवा 15 नवंबर 2025 से शुरू होनी अपेक्षित है। हफ्ते में 7 दिन ये सेवा उपलब्ध होगी। सीधी हवाई सेवा शुरू होने से ये दूरी मात्र 90 मिनट में पूरी होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों का तथा पर्यटन का जो महत्व है बढ़ जाएगा, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा हेतु अनुबंध पत्र इसके बाद प्रदान किए जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं उसके पहले इस पर एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की जाए। तो आइए देखते हैं पहले लघु फिल्म, उसके बाद अनुबंध। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। मध्य प्रदेश 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली विरासत, खूबसूरत जंगल और अद्भुत नजारे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जिसमें 8000 से ज्यादा संतुष्ट यात्री हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा का शानदार अनुभव ले चुके हैं। उसकी जबरदस्त सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम लाए हैं पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा, जो है ज्यादा तेज, ज्यादा आसान और पहुंचे उन जगहों पर भी जहां विमान न जा सके। 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 9 टाइगर रिजर्व और 35,000 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित जंगलों में अब 3 डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर सेक्टर्स के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसे लॉन्च किया गया है 3 महत्वपूर्ण सेक्टर्स में। सेक्टर 1 जोड़ता है इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मांडू, महेश्वर और पश्चिमी क्षेत्र को। सेक्टर 2 में आते हैं भोपाल, पचमढ़ी, सांची, ओरछा और केंद्रीय मध्य प्रदेश। सेक्टर 3 जोड़ता है जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, खजुराहो, चित्रकूट और पूर्वी हिस्से को। संपूर्ण पर्यटन सेवाएं, सुव्यवस्थित अतिथि कक्ष, विशेषज्ञों के साथ अनुभव कीजिए शानदार नजारे। प्रस्थान से लेकर खोजबीन तक हर तरह की मदद। हर तरह के कॉरपोरेट ग्रुप्स, फैमिली हॉलिडेज, आध्यात्मिक यात्राओं या वन्य जीव अभियान के लिए कीजिए शानदार यात्राओं का यादगार अनुभव। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज राजा भोज एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोपहर 2 बजे इस सेवा का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो सेक्टर 1 इंदौर, ओंकारेश्वर, उज्जैन हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड तथा मेसर्स ट्रांस भारत एविएशन के मध्य ये अनुबंध किया जाएगा। इसके पहले कि मैं ट्रांस भारत एविएशन की तरफ से आमंत्रित करूं, मैं चाहूंगी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री शिव शेखर शुक्ला जी मंच पर पधारें। और ट्रांस भारत एविएशन की तरफ से श्री राजेश अग्रवाल जी मंच पर आएं। और हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय सिविल एविएशन मंत्री जी से कि कृपया ये अनुबंध पत्र प्रदान करें। माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी यहाँ पर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। इससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो सेक्टर आप
सुनेंगे वो टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेक्टर 2 भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, सेक्टर 3 जबलपुर, बांधवगढ़ और कान्हा। इस हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड तथा मैसर्स जेट सर्व एविएशन को अनुबंध प्रदान किया जाएगा। यहाँ से श्री राम ओला, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, और शिवशेखर जो हैं वो शुक्ला यहाँ पर मौजूद ही हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री नायडू जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया यह अनुबंध पत्र प्रदान करें। सेक्टर 2 और सेक्टर 3। सेक्टर 2 में भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी और सेक्टर 3 में जबलपुर, बांधवगढ़ और कान्हा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज ये मंच दैदीप्यमान नक्षत्रों से शोभायमान है। आज के हमारे विशेष अतिथि महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ऑनरेबल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी। सो वी हैव ऑन द डेस्क ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी। सर, वी humbly request you to kindly address the august gathering, kindly address us and guide us. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री काश्यप जी, लोधी जी और नीति आयोग से सुमन बेरी जी, और यहां उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, अतिथिगण और बड़ी संख्या में पधारे यहां उद्योग क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मध्य प्रदेश के 17वें स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर आप सभी को मेरे ओर से और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत ही खास दिन है, ना केवल क्योंकि ये स्थापना दिवस है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से एविएशन के संबंध में भी काफी अच्छे काम दर्शाने का एक और मौका भी हमें मिला है। और केंद्र मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के साथ मेरा भी एक अच्छा संबंध रहा है। 4 बार मैं आ चुका हूं। एक बार इंदौर आया था एयरपोर्ट के काम के लिए, उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए एक बार आया था, और भोपाल में हुआ इन्वेस्टमेंट समिट में भी शामिल था, और एक और बार दतिया एयरपोर्ट के उद्घाटन में भी आया था। और मेरा स्वयं का अनुभव यह रहा है कि मध्य प्रदेश में हर यात्रा, हर जगह और हर व्यक्ति ने यहां को खूबी को दिखाया है, और मुझे गर्व है कि यहां सब ने हमें प्रभावित भी किया है। ये मैं बात यहां बोलना चाहता हूं। महाकाल की नगरी उज्जैन से भोपाल की झीलों तक, इंदौर की स्वच्छता से लेकर ग्वालियर की संगीत परंपरा तक, मां नर्मदा की निर्मल धारा से चंबल की घाटियों तक, और भीमबेटका की प्राचीन गुफाओं से लेकर खजुराहो की अद्भुत कला तक, मध्य प्रदेश भारत की संस्कृति समृद्धि का धड़कता हुआ हृदय है। हम सब जानते हैं कि भौगोलिक स्तर पर मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, पर उसके अलावा भी वास्तव में परंपरा की बात हो या प्रसिद्धि की बात हो या फिर हमारे पहचान की बात हो, उस संबंध में भी भारत के मध्य में ये मध्य प्रदेश है। और मैं समझता हूं कि विकसित भारत के इस विकसित प्रदेश की असली पहचान यहां के लोग हैं, यहां की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है। आज मैं भोपाल केवल एक शहर के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि भोपाल एक जज्बा है, एक संस्कृति है और एक अपनेपन का भी एहसास है। हमारे मध्य प्रदेश ने देश को मां अहिल्याबाई होलकर के रूप में मातृशक्ति, जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में राष्ट्रभक्ति और रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती के रूप में वीरता की प्रेरणा भी ये धरती हमें देती है। और आज
हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे यंग एंड डायनेमिक मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और यहां पे उपस्थित सारे जनप्रतिनिधिगण, ये सब भी सेवा के प्रतीक बनकर हमें प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आजादी के काल से लेकर अमृत काल तक मध्य प्रदेश के लोगों ने भारत के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के दर्जा दिया गया था, पर आज उसी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ओम से लेकर एआई तक, नीम से लेकर मशीनरी तक, संस्कृति से लेकर पर्यटक क्षेत्र तक, जितने भी संभावनाएं हमारे भारत के देश में उभर रहे हैं, उन सबको एकीकृत करके प्रगति की ओर आगे बढ़ाने का काम हमारे मध्य प्रदेश राज्य और यहां की सरकार कर रही है। उसके लिए हमें सबको बहुत गर्व है और इसी का हमें एक झलक विजन डॉक्यूमेंट में भी हमें देखने को मिला है। हर क्षेत्र में क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है और किस तरह से सरकार उससे जोड़ रही है और लोगों के जोड़ने के लिए काम कर रही है, उसमें भी विजन डॉक्यूमेंट हम सबको एक आगे एक वे फॉरवर्ड भी दिखाता है। उसी तरह मध्य प्रदेश हो या देश हो, जो ये सब हासिल करने के लिए जो ये उड़ान, जो नई उड़ान हम सब ले रहे हैं, उसका पायलट है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। उस पायलट के वजह से हम भारत जो नई पहचान और नई उड़ान लेने की एक एस्पिरेशन जो हम दिखा रहे हैं, वो सब संभव हो पाया। और को पायलट यहां पे मध्य प्रदेश में है हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी। उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ मध्य प्रदेश में भी जो विकसित भारत के काम है, उसके जो झील है, उसको भी उसमें विकसित मध्य प्रदेश के भी जोड़कर आगे बढ़ाने का काम यहां के राज्य सरकार और यहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और राज्य स्थापना के 17वें वर्ष के इस गौरवशाली क्षण में हम देख रहे हैं कि एनडीए सरकार जो डबल इंजन इंपैक्ट होना चाहिए, उस इंपैक्ट इस 2 साल में अन्य कार्यक्रमों के तहत हम सबको वो भी देखने का एक अनुभव मिला है। और इसे अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में देश और दुनिया के सामने आज प्रस्तुत भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अब केवल संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि समृद्धि और संपन्नता के लिए भी जाना जाएगा। आध्यात्म से लेके आर्थिक शक्ति और आर्थिक विकास के लिए भी आगे जाते हुए जाना जाएगा। इसी तरह जिस तरह हम प्रदेश में एक विकास की प्रगति को एक चिन्ह देख रहे हैं, उसी तरह देश में भी नरेंद्र मोदी जी की प्रगतिशील नीतियों के द्वारा हम बहुत सारे अचीवमेंट्स आज हासिल किए हैं। मोदी जी के 11 साल में हमने भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाया है। मोदी जी के 11 साल में हमने भारत में एक देश एक संविधान बनाया है। मोदी जी के 11 साल में हमने भारत को यूपीआई से जोड़कर एक डिजिटल शक्ति बनाया है। मोदी जी के 11 साल में जीएसटी को लागू कर यहां के सारे भारत के सारे व्यापारियों को सरल बनाने का काम किया है। मोदी जी के 11 साल में भारत के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। मोदी जी के 11 साल में जल कल्याण के लिए जन धन आधार का भी हासिल करने का काम किया है। और मोदी जी के 11 साल में 15 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से हटाकर आगे लाने का काम भी हमने किया है। और मोदी जी के 11 साल में रोड्स हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी आप क्षेत्र देखिए, हर चीज में आज देश एक ब्राइट स्पॉट उभरता हुआ बाहर आ रहा है। और इन 11 साल में भारत की प्रगति और समृद्धि को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को भी साथ जाकर आगे जाने का भी काम किया है। और इसमें ये जरूर उदाहरण मैं लेना चाहूंगा, कोविड जब वैक्सीन अब भारत ने बनाया था, अब वैक्सीन को बहुत सारे देशों को हमने एक्सपोर्ट कर वहां पे भी लाखों करोड़ों लोगों के जान बचाने का काम भी हमारे देश ने, भारत ने उस टाइम किया था। तो ना केवल विश्व गुरु, विश्व बंधु भी भारत आज है। ये इसका सजीव साक्षी हमारे प्रधानमंत्री के जो काम पूरे देश विदेश में जो चल रहे हैं, वो सब के द्वारा हमें पहचान भी मिल रहा है।
और उसी तरह अगर भारत को तोड़ने का या भारत से पंगा लेने का भी काम अगर कोई करता है तो उनको भी मिट्टी में कैसे मिलाना है, ये भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पूरे विश्व को भी दिखाया कि उन सब चीजों में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसी तरह ये नागर विमानन क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूं तो सालाना 10 से 12% की वृद्धि के साथ आज हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े नागर विमानन क्षेत्र आज भारत बना है। और पिछले 11 साल में एनडीए सरकार ने देश में नए एयरपोर्ट की संख्या अगर 2014 की बात करें तो 74 एयरपोर्ट्स थे और आज आपने देखा होगा पिछले महीने हमने नवी मुंबई के दूसरे एयरपोर्ट भी खोला, उससे नंबर बढ़कर हुआ है 164। 74 से लेके 164 मतलब पिछले 11 साल में हमने 90 नए एयरपोर्ट हमने खोले हैं। 90 एयरपोर्ट की अगर ये संख्या विश्व में कोई भी देश में अगर जाएंगे तो चौंक जाएंगे कि 90 एयरपोर्ट कैसे एक देश में बने हैं। पर जिस तेज गति से मतलब हर 45 दिन में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम हमारे देश में ये हुआ है, ये पिछले 11 साल का एक सिग्नेचर है हमारे एयरपोर्ट के क्षेत्र में। और उसी तरह अगर हमें मध्य प्रदेश में देखें पिछले 11 साल में 5 नए एयरपोर्ट भी बने हैं और कुल मिलाकर 8 एयरपोर्ट हैं। और मैं भी आया था उस टाइम दतिया के नया एयरपोर्ट खोलने में, उसी टाइम सतना भी खुला और रेवा एयरपोर्ट भी इसी कार्यकाल में खुला। और आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत खुशी है, हमने एक एमओयू भी आज किया है कि महाकाल बाबा की असीम कृपा से हम उज्जैन में भी एक नया एयरपोर्ट चलाने का काम बहुत ही जल्द करने वाले हैं। इसके लिए मैं खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया, क्योंकि उज्जैन में एक एयरपोर्ट की संभावना बहुत सालों से ये चल रही थी बात की कब होगा कब होगा कब होगा। वो एक मोहन से नहीं अब 2 मोहन जुड़ गए, मोहन यादव जी और राम मोहन, मैं दोनों जुड़ गए तो ये संभव होना ही था अभी तो दोनों मिलकर ये जरूर देखेंगे कि उज्जैन में भी, क्योंकि इसके यहाँ पे उज्जैन के लिए काफी अच्छा ट्रैफिक है, देश विदेश से भी महाकालेश्वर के दर्शन के लिए और साल भर में आते रहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत जरूरी थी कि वहां पे भी एक एयरपोर्ट खुले। तो बहुत ही जल्द हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर एक अच्छा एयरपोर्ट वहां पे भी खोलने का काम हम करेंगे। और एयरपोर्ट और एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है कि सिर्फ एयरपोर्ट जब देखते हैं कि ऐसा जगह नहीं है कि जहां से यात्रा एक आदमी को यहां से वहां जाने की एक सुविधा मिले। एयरपोर्ट से बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। एयरपोर्ट एक्चुअली एक इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। एयरपोर्ट से व्यापार जुड़ा है, एयरपोर्ट से पर्यटक जुड़ा है, एयरपोर्ट से हमारे उद्योग जुड़ा है, रोजगार जुड़ा है, एयरपोर्ट से शिक्षा जुड़ा है, एयरपोर्ट से स्वास्थ्य जुड़ा है और एयरपोर्ट से लेकर कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक हर चीज जो भी देखेंगे, ट्रेड कॉमर्स हर चीज, रियल एस्टेट के साथ हर चीज भी एयरपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तभी आप देखेंगे जहां पे भी एक नए एयरपोर्ट की घोषणा जब होती है तो एक अलग माहौल वहां पे बन जाता है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटी का एक इंजन जैसे शुरू हो गया हो उस तरह का एक माहौल बनता है। तो हम जब नए एयरपोर्ट की बात जब करते हैं तो इसके लिए नहीं कि वहां पे यात्री जाएंगे इसी के एक कारण से नहीं बनाते, वो हम चाहते कि एयरोट्रोपोलिस की तरह एक इकोनॉमिक का इंजन बने, इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत हो, उस सेंस में हम करना चाहते हैं। इसलिए 90 एयरपोर्ट जो संभावना थी ये सिर्फ लोगों को एविएशन से जोड़ने के लिए ही नहीं बट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम हमारे एयरपोर्ट्स करते हैं। तो उस संभावनाओं के साथ हमने एयरपोर्ट्स बनाने का काम किया है। और उसी तरह जब एक प्लेन चलता है, हर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए डायरेक्टली 30 लोग चाहिए होते हैं। तो डायरेक्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन है वो 30 लोग का है और इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो 100 का है। 100 लोगों को रोजगार देने की संभावना एक एयरक्राफ्ट देती है। और कितने एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास अभी? भारत में करीब 800 के एयरक्राफ्ट है अभी। और कितने ऑर्डर दे चुके हैं हमारे एयरलाइंस वाले, चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो या स्पाइसजेट हो, अकाशा हो या फिर छोटे एयरलाइंस के हो, कुल मिलाकर 1700 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर अभी भारत में है, जो दुनिया में ही सबसे ज्यादा है।
तो सोचिए कि कितने रोजगार, और ये सारे जैसे एयरक्राफ्ट हमारे फ्लीट्स में आएंगे, हमारे एयर स्पेस में आएंगे, तो कितने रोजगार की संभावनाएं इस एयरक्राफ्ट के चलाने के वजह से भी बढ़ेंगे, ये सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी तरह आज रेवा से भी हम दिल्ली हो या रेवा से इंदौर, ये भी नए रूट्स हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। और इसके लिए मैं अलायंस एयर को और इंडिगो को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और ऐसे जो टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में भी जो हमने एयरपोर्ट बनाए हैं, आज तो एक थोड़ी सी मुश्किल हालात है क्योंकि एयरपोर्ट्स हमारे पास ज्यादा हो गए, एयरक्राफ्ट उतने नहीं हैं। तो आप देखते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतना नहीं है। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा, जैसे ये 1700 के ऑर्डर जैसे जैसे आते जाएंगे, तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के कनेक्शंस भी बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। और उसके अलावा भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, एक मंत्र है, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर। ये पहले तो लगता होगा ये हंसी मजाक का एक चीज लगती होगी, पर आज उसी चीज को ये सफलता की ओर बढ़ाया है और इसको सच करवाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज कोई भी एयरपोर्ट आप जाके, मोदी जी ने आज कोई भी एयरपोर्ट आप जाके देखेंगे तो लोअर इनकम के, लोअर मिडिल क्लास हो या न्यू मिडिल क्लास हो, वो सब भी आज गर्व के साथ हवाई यात्रा कर पा रहे हैं। ये संभव हुआ केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के वजह से। उन्होंने शुरू किया था उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक का स्कीम, जिसे ये टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में जो एयरपोर्ट्स थे, जो एयरलाइंस को लग रहा था ये शायद अनवायबल हैं, उनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर वहां पे भी नए रूट्स की शुरुआत करी हमने, नए एयरलाइंस भी वहां पे लाने की शुरुआत करी। तो उसी तरह जैसे जैसे हमारा नेटवर्क, हमारा एयरक्राफ्ट फ्लीट बढ़ेगा, तो जरूर जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहां पे भी कनेक्टिविटी अच्छी अच्छी होती जाएगी। और हमारे पास ऐसी आलोचना ऐसी रहती है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज कनेक्ट किससे होना चाहते हैं? बड़े बड़े शहरों से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, या तो दिल्ली से या मुंबई से। और दिल्ली में जिस तरह से एयरपोर्ट है, मुंबई में जिस तरह से अभी तक एयरपोर्ट है, उसमें जो डिमांड की वजह से जो प्रेशर वहां पे बनता है, जो पीक आवर के स्लॉट्स है, वो सब खत्म हो गए। तो उसी वजह से आज दिल्ली में भी जेवर, नोएडा में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, मुंबई में नवी एयरपोर्ट अभी बन गया है, बैंगलोर में एक नया एयरपोर्ट की संभावना है। और इसी तरह जो बड़े बड़े शहर है, चेन्नई में भी एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे दूसरा एयरपोर्ट भी आएगा, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज से कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी होती जाएगी। ये एक पिक्चर में आप सबको दिखाना चाहता हूं कि एविएशन एक ऐसा क्षेत्र है कि अभी तक जो मैंने ये फिगर्स, ये स्टैटिस्टिक्स जो बताएं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ फाउंडेशन है, ये शुरुआत है। अभी तो हमारे भारत के ये उड़ान, ये एविएशन का उड़ान अभी टेक ऑफ होने जाना है। अभी अगले 20 साल में भी ये अकेला ऐसा क्षेत्र होगा जहां 10 से 15% की हर साल प्रोग्रेस, एक ऐसा सेक्टर, ये सिविल एविएशन सेक्टर होगा जो होता ही रहेगा। अगले 20 साल तक इसमें ग्रोथ होता ही रहेगा। इतना डिमांड, इतना कैपेसिटी हमारे देश में है और उसको पूरी तरह से हम पाके रखेंगे। और उसी तरह मध्य प्रदेश को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जो उड़ान स्कीम, तो एक भारत सरकार के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आया हुआ एक स्कीम है, उसको और बल देने का काम हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने किया। यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ की सरकार ने, भोपाल में जो हुआ इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें सिविल एविएशन पॉलिसी भी लेकर आए। और इतना होलिस्टिक पॉलिसी, क्योंकि मैं केंद्र का मंत्री हूं, मुझे हर राज्य से बात करने का एक मौका मिलता है, हर राज्य के एविएशन पॉलिसीज हो या एविएशन का काम हो, सबको देखने का मिलता है। बट मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह एविएशन का काम हो रहा है, वो कोई और राज्य में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। इतना लीड लेकर, रोल मॉडल बनकर, एक अच्छी इकोसिस्टम यहां पे एविएशन का पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया है। या फिर फ्लाइट ट्रेनिंग, एफटीओ, पायलट ट्रेनिंग की बात करें, या एमआरओ की हम बात करें जहां मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल होता है, या फिर एयरपोर्ट्स हम बढ़ाने चाहूंगा कि एविएशन को और एविएशन की शक्ति को यह राज्य सरकार ने पहचाना है
और उसको सही तरह इस्तेमाल करने का भी एक काम इन्होंने सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत किया है। और ये उड़ान स्कीम और यहाँ की सिविल एविएशन पॉलिसी आगे जाते हुए एविएशन का एक बहुत बड़ा हब मध्य प्रदेश में बने, इस तरह का एक संभावना हम सबके सामने एक नजर भी हम सबको देखने को मिलता है। और एक और चीज, टेक्निकल चीज भी अगर आगे जाके बताऊं तो मध्य प्रदेश जो है, यहाँ का वातावरण भी बहुत अनुकूल है ये हमारे एविएशन के ऑपरेशंस के लिए। थोड़ा आगे जाओगे, ऊपर जाओगे नॉर्थ की तरफ तो फॉग का एक चैलेंज रहता है, थोड़ा नीचे जाते हो तो वहां पे ये मॉनसून का, ये फिर सी के करीब होने के वजह से वहां पे अलग चैलेंजेस रहते हैं। बट मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है, पूरे साल भर में एक अच्छा वेदर रहता है जो एविएशन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे प्रकृति भी साथ देती है यहाँ एविएशन के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आगे जाते हुए एक हब बने। और आज भी हम सब बात कर रहे थे तो और क्या हो सकता है एविएशन के संबंध में यहाँ पे, तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी तो एक अच्छा सा लॉजिस्टिक हब, जिस तरह से ज्योग्राफिकली ये देश के सेंटर में है, तो ये लॉजिस्टिक्स हब भी यहाँ पे बन सकता है। आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स किस तरह से बढ़ रहा है, जीएसटी के कारण व्यापार भी हर राज्य के बीच में जिस तरह से बढ़ रहा है, तभी उसके लिए वेयर हाउसिंग और एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स का हब बनाने के लिए एक सेंटर मध्य प्रदेश बन सकता है। तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देकर आगे जाते हुए अच्छा काम करेंगे, जहां रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज और करीब जो पोर्ट्स हैं, नियर बाय पोर्ट्स, तो उन सबको जोड़कर एक लॉजिस्टिक्स हब भी मध्य प्रदेश में बने। उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा लॉजिस्टिक्स हब भी बने। तो ये सब चीजें हैं। और आगे जाते हुए हमारे एविएशन के संबंध में तो इन सब के लिए जो सहायता और जिस तरह से वो सपोर्ट राज्य सरकार से मिल रहा है हमें, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अंत में एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि ये विशेष दिन पर हम सबको एक चीज पर सबको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है स्वभाव से स्वच्छता और स्वभाव से स्वदेशी। ये कंटिन्यूअस कैंपेन रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। एक समय था जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाकर देश को सफाई करने का काम उन्होंने शुरू किया था। चाहे सिंबॉलिक हो या चाहे सबको इंस्पायर करने का काम हो, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री उस टाइम सोच रहे थे कि मैं अकेले साफ करने लग जाऊंगा देश को। उनका एक इंस्पायर करने का तरीका था कि सारे देश को इससे के साथ जुड़ना चाहिए और ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी हम सबके साथ होना चाहिए, चाहे वो एक इंडस्ट्री के ओनर हो या फिर एक आम आदमी हो जो गांव में रहता हो। हर किसी के स्वभाव में स्वच्छता के और दिन बर दिन किस तरह से हम जुड़े, उसके ऊपर एक पूरी तरह से ध्यान रखकर हमें काम करना पड़ेगा। अंदर से स्वच्छता, बाहर से स्वच्छता, एक मंत्र कर कर हम सबको काम करना पड़ेगा। और दूसरा विषय है स्वभाव से स्वदेशी, और स्वदेशी उत्पत्तियां हो या स्वदेशी उद्योग हो, हमें उनको भी, मेक इन इंडिया को भी थोड़ा बल देना पड़ेगा। जहां पे भी आपको लगे, जहां पे भी आपको प्रोत्साहन करने का मौका मिले, वहां पे जो स्वदेशी उत्पत्तियां हैं उनको हम सबको थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं तो उसको साकार करने के लिए हम पूरे देशवासियों को, सबको उस तरह का जन आंदोलन में हम सबको भाग लेना पड़ेगा। तो ये दो विषय हैं, ये सीधी प्रधानमंत्री जी की बातें हैं जो मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उनको हम सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और खासकर इस विशेष अवसर पर 17वां स्थापना दिवस के इस दिन पर आप सबको, मध्य प्रदेश के पूरी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए भी एक खास है क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं और 1956 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों मिलकर एक नया आंध्र प्रदेश भी 1956 1 नवंबर को ही बना था। तो हम भी काफी समय तक ये दिन को स्थापना दिवस मना रहे थे। फिर 2014 में हमारा भी विभाजन हुआ था, जिस तरह यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हुआ, हमारा भी आंध्र तेलंगाना विभाजन हुआ। पर ये खूबी है भारत में कि अंदर से जितना भी विभाजन हो, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं, हम सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं और हम सब भाईचारा रखते हैं। इसी भाईचारा ने, देखिए कहाँ से, आंध्रा से मैं आता हूँ और यहाँ मध्य प्रदेश के एक मंच पर खड़ा हूँ, आप सबके बीच में खड़ा हूँ। ये भारत की खूबी है, इस खूबी को हमें और शक्ति देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस विशेष मंच पर मुझे एक मौका मिला आपके साथ यहाँ इसमें भाग लेने के लिए, इसके लिए मैं
राज्य सरकार को और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और सबको बधाई देकर मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी, भावनाओं से भरा हुआ और ऊर्जा से भरा हुआ आपका संबोधन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओजमई सोच और अप्रोच से, प्रखर नीतियों और प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा निवेश के लिए जबरदस्त सकारात्मक वातावरण बना है। इनोवेशन तथा उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम अब बड़े बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य की लगभग 2 साल की निवेश प्रोत्साहन यात्रा की उपलब्धियों पर आइए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। मध्य प्रदेश आस्था, आध्यात्म और असीमित संभावनाओं की धरती। यह वही प्रदेश है जिसने सदैव भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाई है। आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया और मध्य प्रदेश पिछले 22 महीनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ओजस्वी नेतृत्व में उसी संकल्प, ऊर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि राज्य की औद्योगिक नीति का सक्रिय अध्याय बना, जहां हर नीति का केंद्र है रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता। लक्ष्य स्पष्ट था, मध्य प्रदेश को देश का सबसे भरोसेमंद, तेजी से उभरता और निवेश हितैषी औद्योगिक केंद्र बनाना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध। निवेशकों के सामने रखा गया। मध्य प्रदेश ने 18 नई निवेश नीतियां प्रस्तुत की और पहली बार 5 प्रमुख सेक्टरों की समानांतर समिट्स आयोजित हुई। इन प्रयासों से 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अब ये निवेश जमीन पर उतर रहे हैं। कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं। नागरिक सेवा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। जन विश्वास अधिनियम, GIS आधारित भूमि प्रणाली, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज योजना और MP इन्वेस्ट पोर्टल ने शासन में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ाई है। निवेश के साथ साथ औद्योगिक अवसंरचना के विकास में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 10,000 करोड़ से अधिक का औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में निवेश, लगभग 80 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और उन्नयन तथा 4 मेगा पार्क शामिल हैं। 21,550 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास जारी है, जबकि 5,562 एकड़ भूमि उद्योगों को आवंटित की जा चुकी है। राज्यों द्वारा उद्योगों और MSMEs को 5,260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि निवेशकों के प्रति भरोसे और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश अब मेक इन इंडिया